Om Shri Sai Ram, offering my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. A loving Sai Ram and welcome to all the participants for today's sixth session of the program, Atirati in Apatti. Today, we have with us an ever smiling and energetic personality blessed with opportunities of darshan, sparshan, and sambhashan with the Divine Mother Sai, an alumni of Sri Satya Sai Balvikas, former National Coordinator for Disaster Management India, leading from front for any and every disaster like situations, a veteran trainer for Disaster Management India, currently blessed to be State Vice President of Sri Satya Sai Seva Organizations, Madhya Pradesh, and National Coordinator for Sri Satya Sai Vidya Jyoti program. He is none other than our very own Sri Amit Dubey, who is fondly called as Amit Bhai by all. On professional front, he is a mechanical engineer efficiently handling the responsibility of director in a brand named Monton Technomake Private Limited, who specialized manufacturer of office and institutional furniture with best standard in class. Now, I request our beloved brother Amit Dubeji to please take over the session. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranam, thy lotus feet of our most beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Thank you very much for giving me this opportunity. Respected State President Oscar Sir, dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to all of you. Really, I'm very thrilled again to see all that faces. I think 3 years back, we did a very good offline, because pre-COVID era, it's all offline. So at that time, we did a very good training session at Goa. I was there for 2 days and really very inspired by the team of Goa. So now let us not waste any time. स्वामी का काम, स्वामी की glory, और जिस the mission which we are handling, Swami has given us a opportunity to be a part of this unique, really I say it's a unique opportunity to serve the humanity. Now, basically this disaster management, जिसको हम लोग आपदा भी बोलते हैं, आपदा प्रबंधन, ये और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ तालमेल एक समझ में नहीं आता. व्हाई दिस, क्यों स्वामी ने इसके लिए बोला? यू नो द हिस्ट्री, यू नो द स्टोरी. 2002 में अचानक कुछ कन्वर्सेशंस हो रहे थे और अचानक स्वामी ने कुछ लोगों को वहां बोला कि हमारे पास कुछ ट्रेंड सेवा दल होना चाहिए टू डील विद द सिचुएशंस. और उसी के बाद इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया. एंड स्वामी का जो इशारा था वो मेनली नेचुरल कैलेमिटीज पे था. और उसके बाद श्यामल सूर जी जिन्होंने की इसके ऊपर
स्वामी की कृपा से, बिकॉज विदाउट स्वामीज ब्लेसिंग कोई भी चीज ह्यूमन लेवल पर नहीं हो सकती। स्वामी ने उसको हमको प्रेरणा दी, और नाउ दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज, यू कैन से इट्स ए वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग, और सही मायने में भगवान जो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा, इसका यदि कहा जाए एक चरितार्थ, यदि कुछ करने को हमको मिलता है, देखिए अपने लोगों के लिए, टू होम, जिनको कि आप जानते हो, यू नो देम वेरी वेल, जो आपके आसपास हैं, यदि आपने उनके लिए करा तो तब भी एक स्वार्थ, एक सेल्फ इंटरेस्ट तो होता ही है। लेकिन किसी ऐसे के लिए जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, एंड इवन यदि आप उसको कुछ हेल्प करते हैं, आप उसके कुछ काम आते हैं, तो यह होती है असली मानव सेवा। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूं, बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आखिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, और वाई वी, क्यों हम। सो वाई वी पे मैं सबसे पहले मैं आई विल स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। आप लोगों ने वैसे सुनी होगी, पर इन दिस कंटेस्ट की बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि आखिर हम क्यों, मतलब ऐसा भगवान ने हमसे क्यों बोला गया, क्यों इस डिजास्टर मैनेजमेंट में आज हमको, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमको भजन करने हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, वी हैव टू टेक अस टू अनदर लेवल। तो ये सब चीजों के बाद ये डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आखिर ऐसा क्यों, तो वाई वी। तो मुझे एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद भी आती है और मैं आपको सुनाता हूँ। इट्स ए स्टोरी जो कि इन फ्लाइट स्टोरी कहलाती है। तो एक फ्लाइट जो है वो अपना रेगुलर उसका रूट पे वो चल रही है, उड़ रही थी, और उस फ्लाइट में सभी लोग दे आर, सब अपने अपने, ऑल पैसेंजर्स आर देयर, सब कुछ चल रहा है, और अचानक से एक बहुत टर्बुलेंस आता है। और वहां पर वो बहुत बड़ा टर्बुलेंस था, एक ऐसा था कि सभी लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, पूरा फियर एटमॉस्फेयर हो जाता है। और उसमें पैसेंजर्स अलग अलग हैं, उसमें कुछ बिजनेसमैन हैं, सभी लोग अलग अलग तरह के लोग थे। स्पेसिफिकली 2 लोगों की बात है, उसमें एक प्रीस्ट था। तो जैसे ही वह स्थिति हुई, तो उस प्रीस्ट ने जो है इमीडिएटली वो ही स्टार्टेड, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, वो भगवान को याद करने लगा और मन ही मन प्रे करने लगा। और जब वो प्रे कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक बच्ची जो है वो पास की उस पे बैठी हुई है, और वो बच्ची चुपचाप, वो उसके पास एक छोटा सा खिलौना है, उस खिलौने को लेकर वो चुपचाप उसके पास बैठी हुई है, वो देख रही है, अपना कर रही है। शी इज जस्ट लाइक कि वो बिल्कुल अनअवेयर है, और वहां हर पैसेंजर जो है वो पैनिक हो रहा है, वो सब डर का पूरा माहौल है। और ये जो लड़की है बिल्कुल काम कूल, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है। थोड़ी देर बाद सारा ये टर्बुलेंस दूर हो जाता है, और कैप्टन जो है वो बोलते हैं, नो सब सारी ऑल द थिंग्स आर ओके नाउ, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल टू बी फ्री, एंड दैट सारे साइंस उनके दूर हो जाते हैं। तब ये इमीडिएटली, इसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, और ये जो प्रीस्ट है ये उस लड़की से पूछता है, बेटी अभी यहाँ इतना सब हुआ, कुछ लोग चीख भी रहे थे, सब परेशान भी थे, पर मैंने देखा तुम बहुत शांत थी, तुम बहुत काम कूल थी, ऐसी क्या बात है? वाई यू आर सो काम, क्यों इतनी कूल, ऐसे समय तुम ऐसा क्या करती हो? उसने बोला, सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना है कि इस प्लेन को मेरे पापा उड़ा रहे हैं, माई फादर इज द पायलट ऑफ दिस प्लेन, और मुझे पूरा विश्वास है उनके रहते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उनके रहते हुए मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके रहते हुए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
यह जो बात है, भगवान हमसे भी यही चाहते हैं। ही इज द पायलट ऑफ अवर लाइफ। वो ही है जो हमारी इस लाइफ को चला रहा है। तो फिर हम क्यों विचलित हों, हम क्यों डरें? यही कारण है, स्वामी कहते हैं कि यह कार्य तुमको करना चाहिए। इस कार्य के लिए तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। यू आर, हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों हम एलिजिबल हो रहे हैं इस चीज के लिए। सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास, हमारे साथ हर पल हर क्षण भगवान, हमारे स्वामी हमारे साथ हैं। और जब ये भावना आपके अंदर होगी तो आप हर चीज को करने के लिए आपकी भावना बदल जाएगी। आप पूरी तरह से आप उस पर कूद पड़ेंगे। आखिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या? विपत्ति में होता क्या है? आज आप जो इस वर्ड को यूज कर रहे हैं आपत्ति, ये आपत्ति है क्या? ये अचानक आई हुई विपदा, विपत्ति होती है, दैट इज आपत्ति। यदि आपत्ति को आप अलग अलग करोगे तो यू कैन फाइंड इट कि अचानक आई हुई आपत्ति, यानी आपत्ति तो आ रही है लेकिन वो हमें मालूम भी नहीं, सडनली इट्स कमिंग। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? द फर्स्ट थिंग जो होती है वो होता है हमारी कामनेस, हमारा पीस, हमारा विश्वास। ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। ये सारी चीजों से हम अपने आप को, जहां आपने धीरज छोड़ा, देखिए ना, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे ही आप किसी स्कूटर पे आप जा रहे हो और अचानक कोई सामने आ जाता है और उस समय यदि हमने अपना ध्यान, या कहा जाए हम जरा भी पैनिक हो गए, तो ब्रेक दबाना रहता है, उसकी जगह क्या होता है? एक्सीलेटर दब जाता है, या एक्सीलेटर आपका घूम जाता है। जहां रुकना चाहिए वहां और आप जोर से चले जाते हो। ये क्या होता है? दिस इज ऑल द पैनिक सिचुएशन। सो टू हैंडल द एनी पैनिक सिचुएशन, उसके लिए जरूरी है हमारा मस्तिष्क, हमारा हार्ट, हमारा हेड, ये सारी चीजें एक बहुत स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। और स्टेबिलिटी कब होती है? सिंपल है, देखिए ना, आप ऑपरेशन थिएटर पे हो और डॉक्टर जो है वो आपका ऑपरेशन कर रहा है, उसके हाथ में नाइफ है, तो आप ट्रस्ट भी रहता है और आप सोचते हो नो, ही इज डूइंग फॉर माय गुड, और आप चिल्लाते नहीं हो। लेकिन वहीं वही नाइफ यदि किसी चोर के या किसी गलत आदमी के हाथ में होता है तो आपको मालूम होता है कि नहीं 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 नहीं, अब आप क्या, आप उस समय काम रहते हो? नहीं, आप एकदम घबरा जाते हो। तो वही चीज है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, या जो भी डिजास्टर आएगा, नॉट ओनली नेचुरल कैलामिटीज, हमारे हर दिन, हर पल, हर क्षण यह आपत्ति आती रहती है। यह आपत्ति की हम केवल उससे प्रिपेयर होने की बात नहीं कर रहे हैं। ये यदि भगवान ने हमको डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेन होने को बोला है तो वह केवल और केवल वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हम कैसे विचलित नहीं होंगे, हम कैसे अपने आप से, जो कहते हैं ना, दिस इज वैसे स्पिरिचुअलिटी में कहा जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट या संभाव की स्टेट, तो उसी का एक रूप है कि जब भी कोई विपत्ति आएगी हम किसी तरह से डरेंगे नहीं। हमारे अंदर हमें विश्वास है कि नहीं, हम उससे किसी भी न किसी तरह फाइट करके हम उससे जीत जाएंगे, हम उससे निकल जाएंगे। हम इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि वी हैव अवर गॉड विथ अस। हमारे साथ हमारा प्रिय भगवान है, वही हमसे करवा रहा है। ही इज द डूअर, वही करवा रहा है, उसी के द्वारा यह करा गया है, और जिसको मैं कर रहा हूं वो भी भगवान है। जब ये तीनों सिचुएशंस एक समझ के आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कोई आपको डरा हिला नहीं सकता। दूसरी जो स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा था, वो दूसरी स्टोरी बहुत सिंपल है। एक आदमी बड़ा, वो जब इस दुनिया में उसने सब कुछ देखा, इस जगह पर जब उसने इतना, ऑल सब जगह झूठ है, फरेब है, सब जगह कहा जाए ईर्ष्या है, इतना सब इस संसार में। आज आप न्यूज़पेपर खोलिए या आप टीवी न्यूज खोलिए, आप देखते हैं सब जगह चीजें जो हैं, सब जगह निगेटिविटी है। आखिरकार उसको एक दिन मौका मिला तो उसने भगवान से, उसको बोलने का मौका मिला तो उसने भगवान के सामने कहा, भगवान ये तूने क्या दुनिया बनाई? क्या तूने इसलिए ये दुनिया बनाई जहां पर इतना सारा झूठ है, फरेब है,
कोई कोई किसी की बात मानता नहीं, सब चीजें जो आप बोलते हो उससे जस्ट रिवर्स है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसने भगवान के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन करा, ये सब बोलने के बाद, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मालूम भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने बोला, हाँ बेटा, मैंने तो करा है, मैंने तुझे जो बनाया। यू आर देयर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। आप हो, तो आप समझिए भगवान आप पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। ही वॉन्ट टू यू टू बी ए गॉड एट दैट टाइम। और बिल्कुल सही है, ये केवल एक चीज है, यदि हमारे अंदर वह विश्वास हो कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, हमेशा हम उसके लिए आगे हैं, तो आप समझिए आपको वो नवदा भक्ति से जाकर आपको गॉड, मतलब आप मोक्ष को नहीं प्राप्त करोगे, लेकिन आपका एक एक आपका सही डिसीजन, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का एक सही डिसीजन, वो आपको भगवान बना देगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। यदि एक व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट में या मोटरसाइकिल से स्लिप होकर घायल पड़ा हुआ है, सब लोगों की भीड़ है, आप भी वहां से निकलते हैं, आप इमीडिएटली आप रुकते हैं, आप उसको देखते हैं, और उसको देखने के बाद आप तुरंत उसको उठाते हैं, आप डायल करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस आती है, आप उसको लेकर जाते हैं, जाके उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और आप बाहर आ जाते हैं। द मोमेंट उसके घर वालों को खबर लगती है, वो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सब पूछते हैं भाई आखिर क्या स्थिति है। डॉक्टर उनको सिर्फ एक ही जवाब देता है, वो ये बोलता है, सर सही वक्त पर आ गए, यदि ये नहीं आता, सही इस टाइम पे नहीं आता, थोड़ी और देर कर देता तो शायद ये बच नहीं पाता। और उस समय वो जो फैमिली है वो आपके पास टर्न होकर आती है और वो सिर्फ एक बात बोलती है, वो बोलती है, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, आपके कारण आज मेरे बच्चे की, मेरे पति की, आज मेरे इसकी जान बच गई। तो देखिए आपने क्या करा, आपने सिर्फ अपने आप को आगे करा और आपने उसको लेकर आपने एक छोटा सा काम करा, और आपको क्या ओहदा मिल गया? उस फैमिली के लिए आप भगवान बन गए। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान को कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह के कार्य करने से भगवान के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि यस आप भगवान बन के हमारे उस पर आए हो। तो ये जो ट्रेनिंग आपको जो अभी तक मिल रही है और जो आपको आगे मिलने वाली है, सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है, वह केवल और केवल आपको अपने आप से रूबरू, आपको अपने आप से फेस कराती है। अक्सर होता है कि जब भी डिजास्टर आता है, जब भी कोई विपत्ति आती है, हम अपने आप को बहुत डरा हुआ, बहुत असहाय महसूस करते हैं। ये ट्रेनिंग आपको इक्विप्ड करने के लिए नहीं, ये ट्रेनिंग केवल और केवल आपको यह बताने के लिए है, उस समय केवल और केवल भगवान को याद रखो और यह मान के चलो, इससे ऊपर ले जाने के लिए भगवान ने ही तुमको भेजा है। आज तुम उस विपत्ति में यदि खड़े हो तो भगवान चाहता है कि तुम खुद भी निकलो और लोगों को निकाल के ले जाओ, लोगों को बचा के ले जाओ। योर रोल इज नॉट कि तुम उसके विक्टिम बनो, तुम्हारा रोल है कि तुम भगवान बनकर वह कम करके दिखाओ जिसके लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। कई ऐसे उदाहरण हैं, आपने हर चीज, आप जो आपकी अभी 5 दिन से जो 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनमें आपको तरह तरह की चीजें बताई गई हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम बताते हैं, जो सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना विदाउट एनी इक्विपमेंट। आपने देखा, आपने जब फायर को आपने रेस्क्यू का देखा या फायर से आपने फायर फाइटिंग देखी, तो आपने उसमें क्या देखा? आपके पास कुछ नहीं है, आपको बचाना है, अपने आप से उसको बचाना है। कंबल मिल गया तो कंबल ठीक है, यदि पानी मिल गया तो पानी ठीक है, पर मेन एम्फेसिस हम देते हैं कि जब कुछ नहीं है उस समय आपको कैसे रेस्क्यू करना है। बाकी सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, उन सब में इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है, कैसे आग को आपको उससे बचाना है। यदि आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन यह सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन आपको केवल ये बतलाता है कि कैसे आप बिना कुछ होते हुए भी आप कैसे इसको बचा सकते हैं।
यह जो ट्रेनिंग है ये टोटली प्रैक्टिकल, जो आज हमने 2002 के पहले भी, क्योंकि आप जानते हैं जिसको भगवान से, खुदा का जो बंदा होता है या जिसको भगवान से प्यार होता है उसको डर नहीं होता। और जब डर नहीं होता तो बट नेचुरल है कि जब सब लोग डर के पीछे खड़े होंगे तो सत्य साईं को मानने वाला बंदा होगा वही अपने आप को आगे बढ़ाएगा। जय साईं राम कहकर वो कूद जाएगा, वह जय साईं राम कहकर वह उसको कर लेगा। उस समय वह यह नहीं देखेगा कि मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे पास फलाना चीज है या नहीं है। वो तो केवल ये चाहेगा कि बस मैं मेरे भगवान को साथ लेकर इसको बचा लूं। और वही चीज है, उसी के कारण यह सारी ट्रेनिंग में सारी चीजें डिजाइन हुई हैं। सिंपल, आपने देखा कि कैसे फ्लड में, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ ऐसे एपिसोड भी बताऊंगा जो कि जिसमें आपके मन में यह भावना दूर हो जाएगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी सिंपल केस है। अभी आपने कुछ 1 साल पहले आपने सुना होगा कि पंजाब में मेरे ख्याल से रोपड़ या उसके पास एक जगह में यही हुआ था। गणेश विसर्जन के लिए लोग गए हुए थे और बड़ी नहर है, बहुत तेज नहर थी, और उसमें गणेश विसर्जन करते करते समय उसी समय 2-3 आदमी जो है वो उस नहर में बहने लगे और उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। इतना बहाव तेज था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसमें कोई जाकर तैर पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उपस्थित बुद्धि, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट में या किसी भी विपत्ति को आपको टैकल करने में। और उसमें यही था, उन लोगों को आपने जानते हैं सिख जो हैं वो टर्बन्स, अपना पगड़ी पहनते हैं। उसी समय 2 लोगों को ख्याल आया, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, पगड़ी को 2 पगड़ियों को बांधा, बड़ी लंबी सी डोरी करी, उसको फेंक दिया नहर में आगे जाकर, और वो लोग जो बहते हुए आ रहे थे उन्होंने टर्बन को पकड़ लिया और इनको खींचकर बाहर कर लिया। ना रस्सी थी, ना बल्ली थी, ना बांस था, नथिंग इज देयर, लेकिन दिस उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने इसको बचा लिया। चाहे लोगों के पास रस्सी हो, चाहे लोगों के पास चीजें हो, पर यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, आप स्टेबल नहीं होगे, तो आप इस चीज को कितनी भी ट्रेनिंग ले लो आप नहीं कर सकते। चाहे आपको उस जॉब पे क्यों ना रखा हो। हम लोग जम्मू कश्मीर में गए थे ट्रेनिंग देने और भगवान ने हमें ये मौका दिया था। हम लोग तो हम नहीं कह सकते कि हम इतने एलिजिबल हैं, पर सत्य साईं का नाम यदि हमारे आगे जुड़ा हुआ है तो आप हर एलिजिबिलिटी से ऊपर हो जाते हैं। और इसीलिए हमको मौका मिला वहां से जो आर्म्ड पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको ट्रेनिंग देने का। जब हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और जैसे हमारे सेशंस चलते हैं, तो जब हमने उनको ये वाटर रेस्क्यू और इन सब चीजों को बताया, और जब आपने देखा होगा मेडिकल जो फर्स्ट एड हमारे ब्रदर ने आपको बताया था, उसमें हमने CPR मेथड बताई थी और सारी चीजें बताई थी। तो जब ये सब चीजें बताई तो उसके बाद एक जो जवान है, मैं जवान की बात कर रहा हूं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो जवान या पुलिस या होते हैं फोर्स में, वो वैसे ही बहुत दिलेर होते हैं, बहुत जाबाज होते हैं। उसने आके अपनी चीज बताई। उसने कहा कि सर, आज ये आप जो CPR दिखा रहे थे, यदि आज से 10 साल पहले मुझे इसके बारे में मालूम होता तो आज मेरे अब्बू यहां जिंदा होते। मुझे याद आ गया कि उस समय वो इसी तरह एकदम से गिर गए और हम लोग एकदम घबरा गए, और उस घबराहट में हमने उनकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया। कोई कहीं भाग रहा है गाड़ी के लिए, कोई कहीं भाग रहा है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। यदि उस समय हम 2 मिनट थोड़ा सोचकर और हम यदि ये CPR देना शुरू कर देते, और जैसा आपने बताया कि 4 मिनट तक वह, जो आपको मालूम है ब्रेन जो है वो चाहे हार्ट आपका बंद हो जाए लेकिन ब्रेन जो है वो 4 मिनट तक, क्योंकि जो ऑलरेडी पंप्ड ब्लड है वो उसको जिंदा रखता है, तो वो 4 मिनट तक चालू रहता है। यदि हम ये पंपिंग करते और फिर यदि CPR के द्वारा, तो शायद हम उनको बचा सकते थे। ऐसे ही एक जवान ने हमको ये बताया कि सर, पिछली बार फ्लड में मैं खड़ा हुआ था और मैं देख रहा था कि पानी चला आ रहा है और गाड़ियां जो हैं वो पुल के ऊपर से आ रही हैं, लेकिन पानी तेज बढ़ता हुआ पुल की तरफ आ रहा है, और थोड़ी देर बाद देखता हूं कि उस पुल के ऊपर से पानी आ गया और वहां पर जो कार गुजर रही थी उसको पूरा बहा कर वो ले गया
और मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी शर्मिंदगी में उसने बोला कि सर मैं वहां खड़ा होके वीडियो बना रहा था। और यदि आज ये जो आपने ट्रेनिंग दी है, यदि ये ट्रेनिंग मुझे उस समय मिली होती तो मैं उस तरफ ना खड़ा होता, मैं उनको बचाकर आज लोग जो हैं वो यह बोलते, मतलब मेरा वीडियो शूट होता कि मैंने उन लोगों को बचा लिया और मैं वो काम करने की हिम्मत रखता था, लेकिन देखकर डर गया और नहीं कर पाया। तो बेसिकली मैं आपको इसके द्वारा यही बताना चाहता हूं कि यदि आपने डर मन से निकाल लिया, डर का ये मतलब नहीं कि जो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, जीत तो होगी ही आपकी, लेकिन उस जीत के पीछे आपकी जो नियत है, आपके पीछे जो भगवान का की कृपा है, वो ऑटोमेटिकली आपको और आगे ले जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छी तरह से फिनिश करा देती है। आप लोगों ने सुना होगा और शायद हमारे इसमें आपको बताया भी गया था शुरू में इंट्रोडक्शन में, एक 4 कैंडल की आपको स्टोरी बताई हुई थी। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक्चुअल, क्योंकि आप सबके मन में मुझे मालूम है ये विचार चल रहा होगा, अरे भैया बोल तो आप रहे हो भूकंप में जाने की, या बोल तो आप रहे हो इतने बड़ी आपदा में 24 घंटे में पहुंचने की, अरे हम 3-4 लोग इस चीज को कैसे हैंडल कर लेंगे? कुछ भी नहीं है, आपने बोल दिया बस चले जाओ, हमें मालूम नहीं वहां क्या स्थिति है, हम क्या करेंगे? भगवान, ये जो 4 कैंडल की स्टोरी है उसमें सिंपली बस यही है, आपको केवल वहां जाना है। और जैसा आपको याद है कि उसमें सबसे पहले मोमबत्ती जो बुझती है वो प्रेम की बुझती है, शांति की बुझती है। सेकंड मोमबत्ती जो बुझ जाती है वो विश्वास की बुझती है। तीसरी मोमबत्ती प्रेम की बुझती है। और चौथी मोमबत्ती जिसका नाम आशा है वो वापस सारी मोमबत्तियों को जला देती है। ये आपको याद होगा। अब आप सीधे एक सीन की कल्पना करिए, और ये होता है, ये हुआ है, इट्स ए रियल फैक्ट। जब गुजरात में भूकंप आया था और हमारे लोग बिना कुछ सोचे समझे वहां जब पहुंच गए थे, तो उन्होंने जो स्थिति देखी तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितना बड़ा काम करा। आप सोचिए, आदमी का महल गिर गया, उसके लोग अंदर दबे हुए हैं, वो बैठा हुआ है, और जैसे ही वो बैठा हुआ है घबराया हुआ, कुछ नहीं, शॉक की स्थिति में है, और जैसे ही आप पीछे से पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, द मोमेंट आपने उसके ऊपर हाथ रखा, वो बाहर आता है, वो आपकी तरफ देखता है। वो जैसे ही देखता है उसको समझ में आ जाता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। वो एक गहरी सांस लेता है, उसको लगता है ओ माय गॉड, अरे वाह, चलो कोई तो है, अब मैं अकेला नहीं हूं, कोई आ गया। और थोड़ा सा उसके अंदर शक्ति जाने, पहली मोमबत्ती की जो शांति चली जाती है वो अपने आप जल जाती है। सेकंड आता है कि जैसे ही वो आपकी तरफ देखता है, वो अपने आप को, वो सबसे पहले बोलता है, थोड़ी देर पहले वो कोस रहा था कि ये भगवान तूने क्या करा, और आपके आने के जस्ट बाद वो बोलता है, अरे भगवान तूने इनको भेज दिया मेरी सेवा के लिए, इनको मेरी सहायता के लिए। देखिए बदल गया, दूसरी मोमबत्ती जल गई फेथ की। तीसरा प्रेम जो बंद हो गया था, उसको नहीं मालूम था, वो सोच रहा था कि अब कोई आवाज लगा रहा है तो लगा रहा है, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो डर गया। और वो बोलता है, अरे वहां से एक आवाज आ रही है, शायद कोई अभी भी जिंदा है, चलो हम उसको जाके बचाते हैं। तीसरी मोमबत्ती जल गई। और ये मोमबत्ती क्यों जली? क्योंकि आप वहां पहुंच गए आशा की मोमबत्ती लेकर, और आपने उनके अंदर ये जला दिया। आपको क्रेन ले जाने की जरूरत नहीं, आपको फावड़े ले जाने की जरूरत नहीं, आपको रस्सी ले जाने की जरूरत नहीं, केवल चाहिए तो करेज। और वो करेज कब आता है? वो तभी आता है जब आपको ये लगे, अरे भगवान ने मुझे तो भेजा है इनको बचाने के लिए। आज आप यदि पुटपर्ती में सबसे पहले एंटर होते हैं, यदि आप टेम्पल ऑफ हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें अंदर घुसते हैं, बहुत बड़े शब्दों में, बहुत बड़े उस पे स्वामी की फोटो के नीचे लिखा हुआ है, परोपकारार्थाय इदम शरीरम। यह शरीर केवल और केवल दिया है तुमको लोगों को बचाने के लिए, लोगों को परोपकार करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ कहना नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़कर इस कार्य को करना चाहिए। कई चीजें आती हैं, कई ऐसे एपिसोड हैं, आपको पता नहीं, आपको बताया
आपको बताया गया है, मैंने देखा उसमें कि जब हमारा बहुत बड़ी आपदा सुनामी आई थी, सुनामी के समय हमें भी नहीं मालूम क्या था, किसी को नहीं मालूम था, किसी ने नहीं सुना था। और वह सुनामी में वही एक ऐसी थी जिसमें कि हमारे लोगों को यह मौका मिला, सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन को, कि यस, जो ट्रेनिंग हमने करी है वो कितनी फायदेमंद है। बिना किसी उसके वहां पर लोग पहुंच गए। आप यकीन मानेंगे, सुनामी सुबह 9 बजे वो इंडिया में उसको टकराई है वेलंकन्नी के तट पर, और हमारे लोग जो थे श्री सैलम और उसके आसपास जो थे, वो लोग 3 से 4 घंटे में वहां पहुंच गए, इवन मच बिफोर आर्मी के पहुंचने से पहले। और उन्होंने वहां जाकर जो सेवा करी है, जो उनको मिला वह वो कार्य करते रहे। रेस्क्यू करा, लोगों को उठाया, लाशों को जलाया, चीजें क्लियर करी, पैनिक स्टेट्स थे, सब लोग थे, उन सारी चीजों को दूर करा। मैं आपको सही बता रहा हूं, जो आनंद जो उस समय मिला है उसको आप कभी नहीं, और किसी चीज से आप नहीं ले सकते। तो पहली बात तो मन में से कभी भी ये चीज हटा दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। Why fear when I am here? इस मंत्र को भगवान ने आपको दिया है, तो हमें इस चीज से तो डरना ही नहीं चाहिए कि अरे ये करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम इसे नहीं कर सकते। अरे करने की तो कोशिश तो करो। देखो तो, आपने देखा कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपको एक वीडियो दिखाया गया था एक छोटे बच्चे का। उस वीडियो को मैं जब भी देखता हूं, पता नहीं आपने उतने ध्यान से देखा कि नहीं देखा, उस वीडियो को जब भी मैं देखता हूं, मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदगी मुझे महसूस होती है। जब मैं दिखाता हूं तो लोग ताली बजाते हैं, पर मुझे लगता है कि अरे ये देखकर लोगों को अपने ऊपर क्रोध क्यों नहीं आया। हम ताली तो बजाते हैं, लेकिन आप बताइए इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और जिन्होंने ये सोचा है कि नहीं, एक दिन मैं भी था जो इस बच्चे की तरह मैंने अपना रोल अदा करा था। उस वीडियो में हर तरह के रोल है, मेरा रोल है, आपका रोल है, आप देखिए स्टूडेंट्स का रोल है, वर्किंग का रोल है, हस्बैंड वाइफ का रोल है, पुलिस का रोल है, हर चीज का, हर जगह हर आदमी का रोल है। लेकिन असली रोल तो जो हमें करना है, ये रोल नहीं, हमें उस बच्चे का रोल निभाना है। भगवान हमसे चाहते हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने हर आपदा के समय, हर विपत्ति के समय, वो चाहे बड़ी हो या छोटी। उस बच्चे को मालूम नहीं था कि वो उस पेड़ को उठा सकता है, ना उसने शो करा। आज हम कोई काम करने जाते हैं तो 4 बार लोगों को हम इधर से उधर बोलते हैं, अरे आओ, क्यों नहीं आते, मैं अकेला ही कौन करूंगा, आओ तुम भी आओ, ऐसा करो। आपने उस वीडियो में देखिए क्या, किस कामनेस के साथ, कूलनेस के साथ वो बच्चा चुपचाप आगे जाता है। इतनी भीड़ में से उसको कोई मतलब नहीं, जाकर अपना बस्ता हटाता है और वो उसको पुश करने लगता है। उसे मालूम है कि वो कभी इसको नहीं हिला पाएगा, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि ये मेरा ड्यूटी है, आई हैव टू डू द वर्क, मुझे तो ये करना है। सो ये जो चीज है कि ये जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, हमसे होगा या नहीं हमें नहीं मालूम, पर मुझे तो करना है, भगवान ने मुझे भेजा है। मैं किसी की विपत्ति, किसी के दुख को देख ही नहीं सकता, आई हैव टू डू दैट। भगवान ने मुझे शायद बनाया इसीलिए, मेरे सामने किसी को परेशानी हो रही हो, ये हो ही नहीं सकता। इस ट्रेनिंग को चाहे आप कितना भी ले लीजिए, आप कितना भी स्किल ले लीजिए, आप नोट्स को पूरी तरह बांध लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके मन में यह भाव नहीं रहेगा कि नहीं, भगवान ने मुझे बनाई इसलिए, दिस इज द, यही भगवान का काम है, मैंने जन्म ही इसलिए लिया है, चाहे मुझे पूरी जिंदगी में किसी एक की जिंदगी बचाने को मिले तो भी मैं सफल हूं, मेरा जीवन सफल है। जब इस चीज को हम समझ लेंगे तो ये ट्रेनिंग जाके पूरी हो जाएगी। इसलिए आप अपने आप को यह मत सोचिए कि यार मुझे क्यों, आप तो ये सोचिए, ओ भगवान ने मुझे इस लायक तो समझा कि मुझे आज वह इस कार्य के लिए मुझे चुना उन्होंने।
आपको याद है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है अर्जुन के और कृष्णा के समय की, कि जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए वो जो बाण मारना था, तो अर्जुन जो थे वो बहुत उसमें थे कि मैं जो हूं वो तो मैं कर ही लूंगा, पर कृष्ण ने उनसे कहा, कृष्ण ने उनसे बोला जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, कर आओ। तो इनको लगा कि इसमें धनुर्धारी मैं, मारूंगा मैं, सब कुछ करूंगा मैं, मुझे प्रैक्टिस है, इसमें कृष्णा का क्या रोल, ये क्या करेंगे। तो कृष्ण ने उनको बोला कि तुम जो कर रहे हो वो तो तुम जरूरी है, लेकिन उस समय आपको मालूम है ना कि उनको बाण मारना था और पानी में उसको देख के मारना था। उन्होंने कहा बाण तुम ही चलाओगे, सब कुछ तुम करोगे, मैं तो बस उस पानी को उस समय स्थिर रखूंगा, उसमें हवा ना चले उसको मैं कंट्रोल रखूंगा। तो जो सारी फेवरेबल कंडीशन तुम्हारे लिए वो तुम नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूं, विकास मैं हूं जो इस प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी नोट्स तुम तैयारी कर लो, यदि नोट्स के पहले उस भगवान को याद कर लोगे, उस नोट्स को कभी भूलोगे नहीं। ऐसा मैं नहीं बोलता कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रैक्टिस के साथ साथ हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए कि करवाएगा तो वो ही, बंधवाएगा तो वो ही, बचवाएगा तो वो ही। आप गलत भी नोट बना लोगे तो आदमी बच के आ जाएगा यदि आप उसको याद करके करोगे। और यदि उस समय खींचते समय आप ये याद रखोगे अरे मैं तो आज, मुझे देखो मौका मिला, मैं इसको बचा रहा हूं, चांसेस बहुत कम है कि वो बचकर आ जाए, अच्छी से अच्छी नोट भी खुल जाएगी यदि अहंकार आ गया तो इस चीज को याद रखिए, इस चीज को हमेशा, कि यह जो ट्रेनिंग जो हमें दे रही है, ये ट्रेनिंग किसी को लिए नहीं, यह ट्रेनिंग अपने आप को मनोबल बढ़ाने के लिए। और यदि आप, सही बात है, इस ट्रेनिंग को लेने का मैं असली जो बताता हूं कि आपने किसी को बचाया या ना बचाया, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप अपने आप को पहचान जाओगे और आप इस ट्रेनिंग के बाद आप एक नए अवतार में आओगे। आप एक अपने आप को न्यू सिद्धांश, न्यू अमित, न्यू रेड्डी, ये बन के आप लोग बाहर आओगे। आप खुद समझोगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर भगवान होगा, आपके अंदर वह अनुभूति होगी, आपकी आंखें हमेशा यही चीज देखेंगी कि कहीं कोई ऐसा ना रह जाए जो परेशानी में हो, जिसको विपत्ति हो। तो यह मेन जो मैं आपको बतलाना चाहता था, एक चार, मैं अक्सर, मुझे बहुत अच्छा वो गीत लगता है और शायद जिंदगी की फिलॉसफी भी है। गीत बहुत पुराना है पर मैं जरूर चाहता हूं आपके चार लाइन आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चार लाइन में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, लोगों के काम आते रहो और हमेशा भगवान को अपने साथ रखो। केवल और केवल वही काम आएगा। बहुत कुछ है इस डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में। अभी जो आपने देखा, जो सुना, ये तो बस एक ट्रेलर है। जब आप उस 2 दिन की, 1 दिन की ट्रेनिंग में जब आप आएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं, उन 2 दिन के बाद कोई ये नहीं बोल सकता, किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होगा कि ये चीज हम नहीं कर सकते। वो एक अलग इंसान बन के बाहर निकलेगा, पर सिर्फ एक प्रेयर के साथ। और वो प्रेयर ये रहेगी, भगवान तूने जो हमें सिखाया है, तूने जो हमें बतलाया है, उसकी कभी जरूरत ना पड़े। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। हम हमेशा ये प्रेयर करेंगे, लेकिन जिस दिन किसी को या कहीं कोई विपत्ति आएगी, सबसे पहले स्वामी का यह बच्चा तैयार रहेगा उसको आगे बढ़ने के लिए। उस समय
हम और कोई रोल अदा ना करेंगे, केवल और केवल उस बच्चे का रोल अदा करेंगे जिसने हमें यह सिखाया है कि जीना इसी का नाम है, इसी तरह से हमें जीना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देता हूं। मुझे आपने यह गिवन अस मी अ चांस वापस उन चीजों को करने का, और मैं यह जरूर चाहूंगा कि हम सब बहुत जल्दी ही ऑफलाइन रूबरू सामने मिलें इस डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और फिर साथ में मिलकर भगवान के इस कार्य को, इस मिशन को, इसको आगे बढ़ाएं जिसका भगवान ने हमें मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को यदि कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी आपके मन में कोई भी ऐसी चीज हो, आई थिंक नाउ इट्स ओपन फोरम, आप पूछ सकते हैं। स्वामी हमें गाइड करेंगे, जो हो सकेगा हम विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू विद द आंसर्स। जय साई राम। Sai Ram, to all the participants, if you all have any questions, so our brother Amit is open, so you can raise your hands so that we can call out your name, so that we can ask your questions. Even you can post your questions on the chat box so that we can read it to Amit Bhai. Saram, या ओंकार प्लीज। Amit भैया, जब तक क्वेश्चंस आते हैं, can you have some of the other experience you have while saving, like real life experience जैसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ आप शेयर करिए, बहुत मतलब that will be inspiring for all of us. देखिए, मैं तो यही बोल रहा हूं कि बहुत छोटे से छोटी चीजों में भी मैंने वो एक चीजें एक्सपीरियंस करी है जो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से पाया है। मैंने कई डिजास्टर मतलब नेचुरल कैलेमिटीज में भी हम लोग गए हैं, और डे टू डे में भी हमने उन चीजों को महसूस करा है कि कैसे हमें इस ट्रेनिंग की चीजें, या कैसे हमें जो चीज याद रही उसने हमको कैसे कहा जाए उस समय पर। मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है। आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात में बहुत तेजी से बाढ़ आई थी, और वहां डाकोर जी करके एक जगह है। डाकोर जी यानी कृष्णा, जिनको की ले जाया जा रहा था विट्ठल को, और वो एक जगह वहां पर वो उनकी मूर्ति गिर गई और फिर वहीं वो रह गई, जिसको कि उठा ना पाए। तो डाकोर जी बहुत फेमस प्लेस है। तो वहां पर हुआ ये कि जो है पानी एकदम से बहुत तेजी से आया, और वो जो वहां की रिवर थी सब जगह से वो बस्ट होकर पानी डाइवर्ट होकर डाकोर जी गांव में अंदर घुस गया। और उस समय हालत ये थी कि वो पूरा गांव जो है वो कम से कम 8 से 10 फुट था, वो पूरा फ्लडेड हो गया। उस समय वहां पर एक ट्रेन भी जो स्टेशन पे खड़ी हुई थी, शांति एक्सप्रेस मुझे याद है, और वो ट्रेन भी पूरी फ्लड से उसमें आ गई थी। और लोग जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म की छत के ऊपर जाकर, और वहां उन्होंने 2 दिन तक वहां थे। और लकीली जैसे ही द मोमेंट, चूंकि इंदौर इज नियर टू दैट गुजरात बॉर्डर, हमारे यहाँ से कुछ 7 से 8 घंटे का रास्ता था, और उस रास्ते में हम लोगों को चूंकि मालूम था, तो इमीडिएटली हमने उसी समय जैसे ही मालूम पड़ा कि ट्रेन फंस गई है और इस तरह से पानी वहां आया है, इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी उठाई और हम लोग निकल गए उसके लिए। कि हमने कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय मालूम था कि ये फ्लड का है, तो हम लोगों ने अपने साथ कुछ मेडिसिन ले ली थी। हमें मालूम था कि जब ये फ्लड जो उतरेगा तो उसके बाद जो गंदगी होगी, और जिसके कारण की कई बीमारियां, जिसको कि आपने सुना होगा फ्लड्स के समय कि लोग फ्लैश फ्लड या इसमें जो है उससे तो कम मरते हैं, लेकिन उसके बाद जो बीमारियां होती हैं, जो महामारी फैलती है, उसके कारण लोग ज्यादा मरते हैं। तो हमने इस तरह से सब दवाइयां और ये सब लेकर हम यहाँ से 4 लोग जो थे वो वहां के लिए निकले। बड़ा ये मैं जरूर बताऊंगा कि रास्ते में जो भी हमें तकलीफ आती गई, हमें समझ में आ रहा था कि कोई एक अनसीन हैंड है जो हमें हर तकलीफों से निकालता हुआ हमको वहां तक पहुंचा दिया। वी आर द फर्स्ट बिफोर, मतलब जिस गाड़ी में हम पहुंचे वो रेस्क्यू टीम जो जा रही थी, कुछ
हमें वहां पर सब मौका मिला तो हम सबसे पहले जैसे ही वहां पानी वो हुआ तो हम लोग वहां पहुंचे रेलवे की टीम के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ। और आप यकीन मानिए जैसे ही वो पानी उतरा कि वो जो है तबाही का जो मंजर हमने वहां देखा, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और हम चूंकि मेडिसिन लेकर गए थे तो हमने शुरू करा अपना मेडिकल, क्योंकि परेशानियां शुरू हो गई थी, मच्छर और सारी जगह गंदगी, और सबसे बड़ी बात पीने का पानी नहीं था। सारा पानी जो था वो मडी हो चुका था, कुछ नहीं था। और उस समय हमने क्लोरोक्वीन की गोलियां जो थी, जो हमें बतलाया गया था और जो आपने सुना है फ्लड में जो होता है, तो हम लोगों ने वहां हर घर में जाकर, जगह जगह जाकर हमने क्लोरोक्वीन की गोलियां, और साथ में जो हमारा फिल्ट्रेशन का जो हम बताते हैं कि आप एक कॉटन का क्लॉथ लीजिए और उसको तीन तीन परत आप बना लीजिए, और वो सारी चीजें हमने उनको बताना शुरू करी। आप यकीन मानिए 2 दिन तक हम 4 लोग और वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें सब जगह ले जाकर जैसा जैसा हम बताते गए वो उन सब कार्यों को उन्होंने करवाया। और 2 दिन बाद वहां पर बाकी का की रोड्स वगैरह खुली, क्योंकि हम तो ट्रेन रेस्क्यू के साथ हम लोग आ गए थे, एक बोगी में हमको लेकर आया गया था वहां तक, और कोई रास्ता खुला नहीं था, पुल सारे खराब हो चुके थे। 2 दिन बाद वहां पर रिलीफ पहुंचा, और जब रिलीफ पहुंचने के बाद वहां पर जब सब शुरू हुआ तो हमें समझ में आया, क्योंकि जो मेडिकल टीम्स आई थी, जो सारे लोग आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे हवाले कर दिए थे और हमसे बोला था यू गाइड देम, और आप उन्हें बताइए, क्योंकि आप पूरी पूरी लोकेलिटी का आपको पूरा अंदाजा है, आपने सब चीजें देख ली हैं। तो हम मेडिकल डॉक्टर्स की टीम और उनको हम गाइड कर रहे थे, यानी ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और जो वहां पर जो भी फिर उसके बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हुआ है, तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको चीजें बताई जाती हैं, ये ही उस समय हमें काम देती हैं। और यही चीज के कारण वहां पर एक बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद तो वहां जब सब कुछ शुरू हो गया तो फिर हम लोग वापस आ गए। और गुजरात की जो, क्योंकि गुजरात का उस समय सेवा चल रही थी पुट्टपर्ती में, और वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने अपनी टीम को रिलीफ के लिए भेजना शुरू करा और अब लोग वापस आ गए। तो दीज आर द थिंग्स। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मेरे पास एक मेरे जिसको कि हमने डिजास्टर में ट्रेनिंग दी हुई थी, और एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, सर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले सर मैं आज बाजार में जा रहा था और अचानक एक जो व्यक्ति था वो तेजी से एकदम से चलते चलते नीचे गिर गया और भीड़ इकट्ठा हो गई, कोई कुछ कर रहा कुछ कर रहा। बोले सर मैंने कुछ नहीं सोचा ना समझा, मैंने बस जैसा चूंकि हमें बताया गया है, आपने ट्रेनिंग में बताया था, मैंने उसकी सिर्फ सांस को 1 मिनट चेक करा और मैंने देखा कि वो नहीं आ रही है, तो मैंने उसको पंप स्टार्ट करना, सीपीआर देना शुरू करा। और सर मैं तेजी से सीपीआर देता रहा उसके ऊपर चढ़ के, और मैंने लोगों को बोला, उसी समय वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आई और मैं दे रहा था, मैंने उनसे बोला कि सर इसको अपने को ले चलना है, और हमने उसको उठाया, मैंने उसको गाड़ी पे रखा और उस गाड़ी पे भी मैं उसको पंप करता हुआ ले गया। और सर जैसे ही हम अस्पताल के पास पहुंचे, अचानक वो व्यक्ति जो है उसने थोड़ा सा मूवमेंट करा और मैंने उसको चालू रखा, और जैसे ही हम वहां ले गए तो बोले सर वो बच गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अभी घर आकर मैंने सबसे पहले आपको फोन करा। तो देखिए ये चीज है, सारी दुनिया वहां खड़ी है, सब देख रहे हैं, लेकिन दिस इज द इफेक्ट ऑफ श्री सत्य साई डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसी लाइव चीजें हैं, बहुत सी हैं जो आती हैं, कई विपत्तियां आपके सामने आती हैं, यदि उस समय आप भगवान को भी याद कर रहे हैं उस विपत्ति में, तो वो भी इस ट्रेनिंग का ही नतीजा है मेरे ख्याल से। और भी बहुत चीजें हैं, बट आई थिंक टाइम अब जब मिलेंगे तो बहुत इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बिल्कुल बतलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। साई राम। थैंक यू अमित भैया। एक्चुअली आपका जो सीपीआर का एक्सपीरियंस था, इट एक्चुअली गेव अस गूज़बम्प्स। थैंक यू भाई। Sairam participants, if anyone else has any questions, they can unmute and ask, or they can even type in their question in the chat box.
Sairam Ahmed ji, this is Anand Velu. Excellent Hi, talk. Anand. Sairam Anand, thank you very much. Excellent. We really enjoyed after a long break. Thanks, Sairam ji. Thanks, Anand. Thanks. Love you. Saram, Reddy, if there are no questions, can we move to the next part of it? Yeah, so if we have no questions, then we move ahead. But as Amit bhai already shared about a small video, I would like to play that video for you all. और मैं चाहूंगा कि आप उसके वर्डिंग्स पे और उसके एक्शंस पे कृपया ध्यान रखें और जो मैंने बोला उसको ख्याल करें. Yes, brother, surely. Thanks a lot. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर. सर आइए सर. ये चल चल. क्या बात है? क्या ऊपर से जाएगा? क्या ऊपर से? जा जा. कुछ करो ना. वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा. ऐसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे. कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है, तू ही है तू वही है. तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा. एक बड़ा अच्छा सिस्टर ने शायद एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए व्हेन इस डिजास्टर में या स्वामी ने हेल्प करा. वैसे तो हर क्षण हर पल ऐसे समय में जो भी होता है वो केवल और केवल स्वामी की मदद से ही होता है. हर चीज उस समय वहां जो होती है वो आपको खुद लगने लगता है कि एवरीथिंग हमारे लिए फेवरेबल होती जा रही है. ऐसा लगता है कि जहां कोई राह नहीं है वहां पर कोई अपने आप आपको लिए राह बना रहा है और आपके लिए आगे चलता चला जा रहा है. इसी जो डाकोर इंसिडेंट्स में मतलब हमने हर पल हर क्षण जब हम यहां से जा रहे थे, आप यकीन मानिए एक बीच में एक रास्ता पड़ता है और उस रास्ते पर मैं ही ड्राइव कर रहा था. टाटा की व्हीकल एक इंडिका थी विस्टा, उसको मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक चूंकि हाईवे था गुजरात का, अब यू नो कि गुजरात में उस समय ये बात है करीबन 10-12 साल पहले की, और गुजरात के हाईवेज आर वेरी गुड. तो वो एक कुछ सफेद पत्थर बीच में पड़ा हुआ था एंड आई थॉट, और वो ऐसा पड़ा हुआ था कि जो मार्क होते हैं रोड मार्क
वो भी वाइट होते हैं, तो मुझे लगा कि वो शायद उसी से मैच होता हुआ एक पत्थर रखा हुआ था। और जैसे ही मैंने उस 100 के ऊपर स्पीड से गाड़ी गई, और वो पता नहीं, वो शायद पत्थर थोड़ा ज्यादा बड़ा और नुकीला था, उसने सीधे हिट करा हमारे चेंबर को, और पूरा ऑयल जो है थोड़ी दूर जाकर एकदम से गाड़ी रुक गई। और रात हो रही थी, शाम को 7 साढ़े 7 बज गया था, बारिश हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। जो आ रहा था वो निकल रहा था, और सबसे बड़ी बात, जो निकल रहा था वो पता नहीं हमें देख के बार बार हमको कुछ ऐसा इशारा कर रहा था कि जल्दी जाओ, या क्यों खड़े हो, क्या हुआ। हेल्प करने को तो छोड़ो, वो लोग से सारे इंप्रेशन ऐसा था कि हमें वहां शायद नहीं होना चाहिए। आखिरकार थोड़ी देर बाद अचानक एक गाड़ी आई, और वो दूसरी तरफ से आई, और उसमें से 2 लोग उतरे, वो मोटरसाइकिल थी, उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने बोला, भाई साहब क्या हुआ? हमने कहा, भाई ऐसा ऐसा हो गया है। अब बोले, आपको तो आगे जाके है, वहां पर 15 किलोमीटर बाद आपको एक गैरेज मिलेगा, चलिए हम आपको ले जाते हैं, हम हमारे पास में ही हमारा घर है, हम वहां से गाड़ी लेकर आते हैं और आपको टो करके हम ले जाते हैं। और वो लोग गए दौड़ के, और उन्होंने गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी को टो करके, और वो हमको ले जाकर उन्होंने 8:30 बजे गैरेज के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई और वो लोग उतरे, कुछ मुझे लगा कि ये गैरेज वाला कुछ थोड़ा सा बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, थोड़ा डर रहा है, वो बार बार हमारी तरफ देख रहा है, और थोड़ा सा। और इतने में उन्होंने बोला, उसने अपनी गाड़ी हटाई, बोले सर अब ये ठीक कर देगा, हम जा रहे हैं। और जैसे ही हम उसके गैरेज वाले के, जैसे ही वो लोग निकले, गैरेज वाला दौड़ कर आया, और उसने बोला, मुझसे पूछता है, आप लोग सब ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? बोले, इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं करा? मैंने कहा नहीं, तो हमको लेकर आए यहां तक, हम तो वहां फंस गए थे। अरे बोले, सर शायद भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, वो जो जहां आप खड़े थे वहां पर डेली जो है वहां लोगों को लूटा जाता है, वहां रोक कर। और ये जो आपको लेकर आए थे ना, ये तो मेन वो लोग हैं जो लोग इकट्ठा होकर ये सब वारदात को अंजाम देते हैं। बोले, आपके ऊपर सही में भगवान की कृपा है, और मैं तो मान ही नहीं सकता। उस समय हमको समझ में आया कि जिस राह पर भगवान ने हमको भेज रहे हैं, हर पल हमारे साथ है, हर क्षण। क्योंकि आप सोच सकते हैं, ऐसे कोई नहीं लाता। उसके बाद भी कई एक के बाद एक ऐसे एक्सपीरियंस उस में हुए कि जिसने हमें इस चीज को पूरी तरह से हमारे अंदर ये डाल दिया कि राह तो वही बनाता है, बस हमारे अंदर कमी रहती। वो तो खड़ा रहता है आगे, हमेशा आगे हमको बुलाने के लिए, हमको ले जाने के लिए। हम ही हैं जो खुद आगे पीछे होते रहते हैं। और भगवान ने जैसी चीज बोली है, जो आपने पूछा है, कुछ करने जाओगे तब एक्सपीरियंस अपने आप होने लगेंगे। यदि हम बैठे रहेंगे टीवी पे डिजास्टर को देखते रहेंगे, यू विल नेवर एक्सपीरियंस गॉड। एक कदम आगे बढ़ा के तो देखो। एक शायर ने बहुत अच्छी बात बोली हुई है, ख्वाहिशों से नहीं भरती झोली फूलों से। आप यदि झोली खोल कर फूल के नीचे खड़े हो जाओगे तो पेड़ को हिलाओगे नहीं, तब तक फूल नीचे नहीं गिरेगा। वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है, अंधेरे को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा यारों, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होता है। जला के तो देखिए, भगवान खड़ा हुआ है आपकी हर मदद करने के लिए, हर अनुभव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस चीज को याद करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Sairam participants, if anyone has questions, they can ask. Otherwise, we move ahead with the session. अमित भाई साईराम। साईराम नारायण। अमित भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन का बाद वापस हमारा दिल पूरा स्वामी का प्रेम से भर गया है और इतना इंस्पायर है। हम जरूर आगे कदम लेगा, हम लोग बहुत करेंगे काम। थैंक यू आपको, आपने मुझे वापस मौका दिया टू रिवाइव ऑल दैट थिंग्स। वो मैं अपने आप को मैंने रिफ्रेश करा है, मुझे वो क्षण याद आया। आई एम वेरी थ्रिल्ड। नहीं आनंद अमित भाई, रियली मैं आंख से आंसू आ रहा है मेरे को।
So if anyone, no one has any questions, so we move ahead. Sairam Reddy, I would like to request sir कि कभी कभी बाद में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम आपको पास ऑन कर देंगे, आप प्लीज इनका आंसर करिए एट Please, योर please, लेजर टाइम। please. I am और सर हम always अगर available. आपकी Always परमिशन हो, available, brother. थैंक यू सर, अगर आपकी परमिशन हो तो हम आपको अथिरथी एंड आपत्ति ग्रुप में भी ऐड करना चाहेंगे, वेरिन अगर कुछ My क्वेश्चन हो pleasure. तो आप My pleasure, brother. My pleasure. थैंक यू Sure. सर। ब्रदर अद्वित, कैन यू हैव द नेक्स्ट पार्ट? Om Shri Sai Ram. Offering my pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. Today, we were fortunate to listen to our brother Amit Dubeji in this sixth session of Atirati in Apatti, a specially designed program by second batch participants of Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation. So Amit Bhai shared with us why Sri Satya Sai Disaster Management started with the divine blessings of our beloved Bhagwan, and the importance of being calm when we go ahead to reach out to others during disasters. First of all, even as Bhai shared, we should have that desire to go ahead and help, and there will be some unseen force behind you. And even as Swami ensures that Swami is the pilot of our life, and Swami also quoted, "Why fear when I am here?" So we should have that faith that Swami is behind us and move ahead. We have to be the Asha ki jyot for the others who are in distress or in trouble. Thank you, brother. Thank you for sharing so many things, and I hope it will. I feel that it will really help all our participants who are already becoming Atiratis. So we have taken a step towards becoming Atiratis during Apatti. Thank you very much for an insightful session on how to handle disasters. Thank you, brother. Jai Sai Ram. रेड्डी शांती मंत्र घेता न्ही शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्यसाई